Hello, good evening, everyone. Namaste, and welcome to the live show on Spurs Healing Center. This is about autism awareness. So, we've got this beautiful guest who's just about to join us. And let me see. Sina, I have sent you the invite. Can you Hi, just. Archana. Hi, good evening. How are you? Good evening. I'm fine. How are you? Good. Thank you. So, before we start the conversation, let me just give a brief about what is it and how we are going to do it to our viewers. Though not many viewers have joined, but still, I think let's just start, okay? Okay. And later on, people will keep joining. That is fine. So, so this chat is going to be about autism awareness, and we've got this beautiful guest, Miss Ina Chawla, who's a business analyst in a multinational firm. I think I'm audible. Am I audible Yes, and clear? yes, you are. Okay, okay. So I don't need to be louder enough. That is okay? Yeah, that's fine. Okay. So she's a business analyst in a multinational firm. She's also done her journalism in graduation. She's a working mother to an autistic kid, and she always sees the brighter side of everything. And that is the best part of her. And she inspires a lot of other women as well. Now, this is about autism awareness. Let me brief you about autism. A little about autism, not much. Let her talk about it. So, autism is a neurological developmental disorder which starts in early childhood and lasts lifelong. So, it's a lifelong disorder. As per Ina's analogy, she says it's not a disease, it's a disorder, and it's spectrum. Why? Because the symptoms in different people differ. So that is why it is a spectrum. And she says that it is like it has different shades of love in the spectrum. And she feels her son is her blessing, as we all feel, and she is being blessed with one of the spectrums, the love that she has got in one of her pockets. So that is the best thing. And I am Archana Tangri. I'm a counselor and a healer working with different healing modalities. I am a neurologist as well, an international NLP practitioner. I'm doing my PhD on meditation, wherein my research revolves around mothers of autistic kids. So that is when I got to know that not many people are aware of this term autism. So hence this campaign of, awareness, autism awareness and acceptance. That is how the kids and the parents would get accepted, because a lot of parents, they go in shell, they go in the denial mode, they don't accept their kids. So I have this beautiful lady here on our screen. So she's really open to all this. She's accepted her son the way he is, and she is an inspiration to a lot of people. And without me talking much, I would want her to talk about it. And the mic is all yours. Ina, please tell us about Sure. your journey. आपने कैसे शुरू किया? आपका, how many kids do you have? Please just get started. Sure. Thank you so much for the introduction and having me on this show, Archana. I want to do this in Hindi because of the lot Okay? of reasons. Yeah, there are a lot of aged people also involved in my YouTube channel that I run. So I want everybody to understand Sure, clearly. sure, sure. We'll do a mixed thing. That is fine. Absolutely fine. So I think as a parent मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है 4 years ago when विराज was born and 1 साल तक तो बच्चा वैसे भी अपने होश संभालता है तो आप नहीं ध्यान देते हैं बहुत सारी चीजों पे आपको लगता है डिले है ठीक है लेट टॉकर होगा मैंने ध्यान नहीं दिया था 3 साल तक तो 3 साल 6 महीने का जब विराज था तब तक भी आई वॉज इन दैट नोशन की वो बोलते हैं ना लड़के लेट टॉकर्स होते हैं तो मैं उसी उसी प्रैक्टिस में थी सो एज अ पेरेंट अगर मैं बोलूं एक्चुअली एज अ पेरेंट मेरी जर्नी आज से 1.5 साल पहले स्टार्ट हुई थी उससे पहले आई वॉज मोर इन टू वर्क एंड घर आना बच्चे के साथ 1 घंटा स्पेंड करना पूरे दिन में एंड देन बैक टू वर्क सो उतना ध्यान नहीं दिया था
And moreover, like any other person, I was also not aware about what autism is. क्योंकि आपकी लाइफ में जब तक आई थिंक कोई भी ऐसी लिविंग कंडीशन नहीं आती है या पार्ट नहीं बनती है, तो आप ध्यान नहीं देते हो उस चीज की तरफ. तो मेरे हिसाब से एक बिग बैंग थ्योरी करके एक सीरीज आती है, उसमें मैंने शेल्डन कूपर को देखा है, तो मेरे हिसाब से ऑटिज्म वो था कि हाँ, ही इज लाइक सुपर स्मार्ट एंड यही ऑटिज्म होता है, when people are like not able to interact but they are quite brainy. बट एक्चुअली जब विराज का डायग्नोसिस हुआ था आज से 1 साल 2 महीने पहले, सो वी स्टार्टेड इन समवेयर अराउंड जून 2020. क्योंकि मैंने अप्रैल से कुछ कुछ पढ़ना स्टार्ट किया था, क्योंकि विराज को मैं देखती थी तो अब मुझे टेंशन होती थी कि ये बोल नहीं रहा है एंड एज जा रही है. सॉरी टू इंटरप्ट, लाइक एज यू सेड ऑटिज्म ये नहीं होता है कि सुपर कूल सुपर स्मार्टनेस नहीं होती है, देन क्या होता है वो भी जरा बताएं आप. हाँ श्योर. तो एक ही ट्रेट पता था मुझे कि ऑटिज्म यही है कि सुपर ब्रेनी, और बस बच्चे सिर्फ बात नहीं करेंगे बट बाकी सब कुछ कर लेंगे. धीरे धीरे जब डायग्नोसिस के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया, फिर हम डॉक्टर के पास गए, फिर डायग्नोसिस फाइनली मिल गया. तो जब मैं गई थी डायग्नोसिस के लिए, इट वाज लाइक मॉडरेट सिम्टम्स थे, लेवल 2 पे था विराज. आज की डेट में ही इज ऑन माइल्ड बिकॉज ऑफ ऑल द प्रैक्टिस. दैट इज द ओनली रीजन दैट अर्ली इंटरवेंशन दे से, कि अर्ली इंटरवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है. तो हमने अर्ली इंटरवेंशन तो नहीं था हमारा, लेकिन स्टिल आई थिंक उसने कोप अप किया है काफी इश्यूज में. तो ऑटिज्म अगर किसी को नहीं पता है, तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम का नाम इसीलिए दिया गया था क्योंकि ऑटिज्म एक चीज नहीं है. ऑटिज्म पर्सनालिटी ट्रेट की तरह है. अब अगर मैं बहुत ज्यादा टॉकेटिव हूँ और तो जरूरी नहीं कि मुझे ऑटिज्म ना हो सकता है मैं बहुत ज्यादा एक सिलेक्टिव टॉपिक के बारे में बहुत सारी बातें कर सकती हूँ, लेकिन मेरे अंदर की इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत लो है. मैं बहुत डिफरेंट चीजों से डरती हूँ जिससे शायद आप नहीं डरते होंगे, लाइक एक थ्रेड या बारिश या किसी को बहुत जोर से हंसते हुए देखना या बलून का पॉप होना. और ये भी हो सकता है कि मुझे वो बलून का पॉप होना, वो बारिश, वो हंसना, वो ही इतना पसंद आए कि मैं बाकी का एनवायरनमेंट छोड़ दूं जो मेरे आसपास है. तो ऑटिज्म के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं. ऑटिज्म बेसिकली एक पर्सनालिटी ट्रेट है. तो लोग जो है ऑटिज्म को, आई एम रियली सॉरी, प्लीज डोंट गेट ऑफेंडेड, बट ऑटिज्म को लोग जनरली या तो मेंटल रिटार्डेशन से कनेक्ट कर लेते हैं, या फिर ऑटिज्म को बिल्कुल ये कनेक्ट कर लेते हैं कि बच्चा बहुत सुपर स्मार्ट होगा, बोलेगा नहीं बट बहुत ब्रेनी होगा और नर्ड होगा बेसिकली. तो मुझे भी ऐसे ही लगता था और मैं किसी को इसके लिए ब्लेम नहीं करती, क्योंकि नॉलेज नहीं होती है तो ऐसा होता है. बट ऑटिज्म में डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव होते हैं पर्सनालिटी के अंदर. आप हो सकता है बात करते हो बट आपको और सारी चीजों में प्रॉब्लम आती हो सकता है आप बाकी सब चीजों में बहुत अच्छे हो लेकिन आपके फाइन और ग्रॉस मोटर स्किल ठीक ना हो, आप एक शू लेस टाई ना कर पाते हो, आप बहुत क्लमजी हो, चीजों को ऑर्डर में ना रख पाते हो, या आप इतने सुपर, आपको ओसीडी की इशू हो कि आपको हर चीज प्रॉपर इंटैक्ट चाहिए, इन अ लाइन चाहिए, आपको एक पर्टिकुलर पैटर्न में चाहिए. सो ऑटिज्म जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं, हर बंदा अलग है, हर इंसान की पर्सनालिटी डिफरेंट है, उसी तरह ऑटिज्म में भी हर बच्चे के इश्यूज, हर बच्चे की चीजें बिल्कुल डिफरेंट है. क्लासिक सिम्टम्स सेम होते हैं, इसलिए डॉक्टर एकदम से डायग्नोस करके बता देते हैं कि ऑटिज्म है, क्योंकि आई कांटेक्ट नहीं होगा, फाइन ग्रॉस मोटर स्किल्स में इश्यू होगा, बच्चा बात नहीं कर रहा होगा, अपने माइलस्टोन को कवर नहीं किया होगा उसने, तो वो डिटेक्ट कर लेंगे कि ऑटिज्म है. बट बहुत सारे पेरेंट्स जब जाते हैं, डायग्नोसिस मिलता है तो बिल्कुल होप्स छोड़ देते हैं, क्योंकि ऑटिज्म मेरे ख्याल से लोग सिर्फ यही कनेक्ट करते हैं, मेंटल रिटार्डेशन है हमारे बच्चे को. नहीं, तुमने तो सुना, आपने आपने क्या सिम्टम देखा जो आप डॉक्टर के पास गए, आपने सोचा कि ये नॉर्मल नहीं है? हम्म. तो मैंने एक चीज बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करी थी कि विराज बिल्कुल भी आई कांटेक्ट नहीं करता था और आंखें हमेशा डाउन ऑन द फ्लोर, हम कहीं भी चले जाएं. मुझे कई बार होता है ना, आपके फैमिली मेंबर्स कर्टेसी के नाते आपको नहीं बोलते हैं कि बुरा ना लग जाए, बट कई बार मतलब ऐसा होता था, मुझे इनडायरेक्टली ऐसा सुनने को मिल जाता था कि ये देख नहीं रहा, ये बात नहीं कर रहा. स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा था, मैं वर्किंग मॉम थी, बहुत स्क्रीन का एक्सपोजर दिया है, तो वो टीवी की भाषा बोलना, एको ले लिया जिसे हम बोलते हैं, कि वही सेम चीज रिपीट करना जो टीवी में सुनी हुई है, वही बोलते जाना चलते फिरते हर समय. पहले बहुत क्यूट लगता था कि अरे मेरे बेटे को तो बोलना आता है, तो बहुत अच्छे से इमिटेट कर रहा है.
बट मुझे सबने ये बोला कि वो बात नहीं करता है, तुम समझो, वो टीवी की भाषा बोल रहा है और वो वही चीज रिप्रोड्यूस कर रहा है बार बार। एंड ही इज नॉट मेकिंग एन आई कॉन्टैक्ट, वो आता नहीं है आपके पास जेस्चर से आपको बताने की मुझे पानी चाहिए, मुझे सुसु जाना है, या वो मतलब नॉन वर्बली भी तो आपको कुछ नहीं बता रहा। तो मुझे वहां से क्लिक हुआ कि हाँ, आई कांटेक्ट नहीं है। कमांड फॉलोइंग बहुत कम थी, मतलब आई गेस शायद सिर्फ 2 कमांड्स थे जो विराज फॉलो कर सकता था, कि दूधू पी लो एंड सुसु कर लो, बस। अपार्ट फ्रॉम दैट कोई कमांड फॉलोइंग नहीं थी। तो वो भी इसलिए कि शायद हमने इतना रिपीट किया है उस चीज को बचपन से, जब से वो पैदा हुआ है, कि वो चीज उसको लर्न हो गई थी। तो जब मैं डॉक्टर के पास गई तो एकदम तुरंत उन्होंने डायग्नोस कर दिया कि फाइन ग्रॉस मोटर स्किल्स में इश्यूज हैं, आई कांटेक्ट नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है बिल्कुल भी, कोई कमांड फॉलोइंग नहीं है। आपको अगर इशारे से बच्चे को समझाना पड़ रहा है, दैट मीन्स वो आपकी वर्बल क्यूज तो बिल्कुल भी नहीं समझ रहा। एंड बॉन्डिंग नहीं थी बिल्कुल भी, मतलब आई बिलीव विराज से कभी कोई किसेस, कोई हग्स आई हैव नेवर रिसीव्ड। अब लास्ट ईयर से आई थिंक शायद 3-4 महीनों से थोड़ा बड़ा है, बट बॉन्डिंग नहीं थी। मतलब मैं ऑफिस भी चली जाती थी तो गेट पे कोई बाय नहीं, कोई रोना नहीं। और एक तरफ से तसल्ली होती थी कि ठीक है, बच्चा रो नहीं रहा है, परेशान नहीं हो रहा, ठीक है, बट बहुत दुख होता था ऑफिस जाते समय सोचते हुए कि मतलब इतना डिटैच हो गई हूं मैं अपने बच्चे से कि उसे फर्क ही नहीं पड़ता। बट एक्चुअली वो उसकी गलती नहीं है, वो उसकी पर्सनालिटी का ट्रेट है कि वो उतना इमोशनली चीजों से कनेक्ट नहीं हो पाएगा। तो डॉक्टर्स यहीं पर आपकी हेल्प करना स्टार्ट करते हैं इन्हीं सब चीजों को लेकर।